Hello everyone, welcome to accountancy class. Let's continue with the chapter journal. Today we will discuss about the practical question of question number 26. So, what is in this question? Transaction number first. Purchased goods for rupees 25,000 for cash and paid rupees 200 for carries on these goods. What will be the journal entry of this transaction? Purchased goods for rupees 25,000 for cash and paid rupees 200. We all know that when we purchase goods, then we will debit the purchased account. Purchased account debit. यहाँ पर हमने कैरीज भी पे किया है, सो कैरीज इनवर्ड आल्सो डेबिट. Carries inward account debit as this is an expense, and purchase account represent the goods account, and goods account will follow the rule of real account. Debit what comes in and credit what goes out. Goods business में आ रही है तो purchase account को हमने debit कर दिया. Carries inward हमारा expense है, that's why it is debited. और बिजनेस से क्या बाहर गया है? कैश. हाउ मच? 25,000 गुड्स. 25,000 की तो हमने गुड्स परचेज की हैं. 200 का हमने कैरीज इनवर्ड पे किया है. तो टोटल जो कैश अमाउंट हमारा गया है दैट इज 25,200 फॉर गुड्स परचेज्ड एंड carries paid. Carries inward also always will write with the purchases, and carries outward for the sales. We use carries outward for sales and carries inward for purchasing the goods. Second one है purchase goods for rupees 40,000 on credit from Sudhir and paid rupees 500 for carries on these goods. यहाँ पर हमें इसे दो ट्रांजैक्शंस में डिवाइड, दो जर्नल एंट्रीज यहाँ पर हम पास करेंगे, बिकॉज एक तो गुड्स परचेज करने की है वो भी ऑन क्रेडिट, और सेकंड है कैरीज हमने पे किया है कैश में. सो हम यहाँ पर इसकी दो एंट्री पास करेंगे. फर्स्ट वन इज फॉर परचेजेस ऑन क्रेडिट. व्हाट विल बी द एंट्री? परचेज अकाउंट डेबिट टू who is the creditor here? Sudhir. Sudhir account. Amount will be 40,000 for goods purchased. Right? Second one is for carries paid. What will we will debit here? Carries inward account debit to cash. How much? 500 rupees. Rupees 500. Clear? Third one. Purchase machinery for rupees 20,000 and spent rupees 500 on its carries and rupees 300 on its installation. We know that when we purchase the machinery, so all the expenses before its installation will include in the machinery account. So we add all the expenses in the machinery account here. Machinery account debit to कैश में परचेज किया है कैश. देखिए 20,000 इसकी मशीनरी परचेज की है, 500 पे किए हैं कैरीज के एंड 300 फॉर इट्स इंस्टॉलेशन. सो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 20,800. नेक्स्ट फोर्थ. परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल फॉर रुपीज 15,000. सिंपल एंट्री है. परचेज अकाउंट डेबिट टू अनिल for goods purchased from Anil 15,000. क्लियर? नरेशन आप लोग लिख लीजिएगा. मैं यहाँ पर स्पेस
थोड़ा सा कम है, इस वजह से भी नहीं लिख रही हूँ। सेकंड नेक्स्ट एंट्री हमारी, सोल्ड 1/3 ऑफ द अबव गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। ये जो अबव गुड्स है 15,000 की, इसमें से 1/3 गुड्स जो है सोल्ड की है एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। लेट्स हैव लुक ऑन वर्किंग नोट्स हियर। 15,000 divided by 1/3, 5,000 is the cost of the goods. How much profit? 20% on cost. Profit 20%, ऐड कर देंगे 5,000, 20% इसका आपका बन जाएगा 1,000। सो सेल जो हुई आपकी वो 6,000 की हुई है। ये प्रॉफिट का अमाउंट आ गया 20%, 5,000 plus 1,000, 6,000 will be the sale amount on sold 1/3 of the above goods at a profit of 20% on cost। देखिए यहाँ पर ना तो हमारे डेटर का नाम दे रखा है, ना ही यहाँ पर कैश दे रखा है, तो ऐसे केसेस में हम इसे कैश ट्रांजैक्शन मानेंगे और हमारा एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हाउ मच? 6,000। क्लियर एंट्री? 5,000 कॉस्ट थी, 20% इसमें ऐड कर देंगे, इसका 20% आपका बनता है 1,000, तो 6,000 में हमने गुड्स को सेल किया है। नेक्स्ट 6 ट्रांजैक्शन देखिए। गुड्स कॉस्टिंग ₹12,000 सोल्ड टू मिस्टर एक्स, इशूड इनवॉइस एट 25% अबव कॉस्ट लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। गुड्स कॉस्टिंग 12,000 गुड्स की कॉस्ट हमने मिस्टर एक्स को बेचा है माल, इशूड इनवॉइस एट 25% अबव कॉस्ट। सो 25% कितना होगा? 12,000 का 25%, इट मीन्स इसका 1/4 मीन्स 3,000, यानी कि हमने गुड्स बेची है 12,000 की, कुछ गुड्स हमने बेची है 3,000 का प्रॉफिट ऐड करके 15,000 पे, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। अभी तक हमने पीछे किया है ट्रेड डिस्काउंट की, हम कभी भी एंट्री नहीं करते हैं, सिर्फ सीधा ही हम अमाउंट लेस करके लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारी एंट्री क्या बनेगी? गुड्स हमने बेची है एक्स को, मिस्टर एक्स को, तो ऑब्वियसली यहाँ पर कैश नहीं लिखा है तो हम इसको क्रेडिट सेल मानेंगे। व्हाट विल बी द एंट्री हियर? मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हाउ मच? 15,000 less 10%, 15,000 minus 1,500, 12,000 plus 3,000, 15,000 सेल वैल्यू थी, लेस 10% कितना आएगा? 1,500। ये ट्रेड डिस्काउंट है तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर? 13,500 की हमने जो सेल की है यहाँ पर, 13,500, 13,500। क्लियर है? 12,000 कॉस्ट थी, 25%, ये जो 3,000 है ये 25% है 12,000 का, तो ये प्रॉफिट हमने इसमें ऐड कर दिया। 15,000 की सेल हो गई है, 15,000 की सेल पर हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया है 10%, 1,500 लेस करके 13,500 यहाँ पर अमाउंट मिस्टर एक्स को डेबिट करके एंट्री पास करेंगे। नेक्स्ट इज 7th, provide 20% depreciation on furniture costing ₹10,000। 20% डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है, फर्नीचर की कॉस्ट है 10,000। हमें पता है डेप्रिसिएशन को हमेशा डेबिट करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट एज इट इज द एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। डेबिट टू, किसकी वैल्यू कम हो रही है? यहाँ फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है, टू फर्नीचर। हाउ मच? दिस इज 20% ऑफ 10,000। 20% of 10,000 means 2,000। जो ट्रांजैक्शन आप, जो कैलकुलेशन आप ऑरली कर सकते हैं उनको आप कर लीजिएगा, जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो उनको क्लियरली यू हैव टू एक्सप्लेन इन द वर्किंग नोट। इट इज मैंडेटरी फॉर टू सॉल्व द क्वेश्चन। लास्ट एंट्री विल बी gave as charity cash ₹500 and goods ₹2,000। चैरिटी की तरह से हमने इसको पेमेंट किया है, कैश दिए हैं और गुड्स दिए हैं, तो यहाँ पर किसे डेबिट किया जाएगा? चैरिटी अकाउंट। चैरिटी अकाउंट डेबिट
कैश एंड 2 परचेजेस। परचेजेस गुड्स को डिनोमिनेट कर रहा है और कैश भी गया हमारा। टोटल चैरिटी कितने रुपए की दी है? 2500। 2500 will be debited here. 2500 is for the cash and 2000 is for the goods. So this is the journal entries for the practical question number 26. आपको आज का जो होमवर्क मिला है उसके अकॉर्डिंग आपको 26 तक करने थे, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा और अपना होमवर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।